कारण क्या है? वो कारण ये है, ये कहते हैं कि हमारा डेबिट कट गया, हमारा माल वापस आ रहा है, हमारे माल का नुकसान हो रहा है। अगर कोई भी क्या फैक्ट्री, क्या पीएफ कह के काट रहे हैं या कुछ नहीं सर, कोई पक्के में नहीं है, सब कच्चे में है। सब कच्चे में है? जितनी कुछ भी लेबर बैठी है वो सब कच्चे में सर। अच्छा, किसी से कोई साइन नहीं करवाए जाते, किसी का कोई पीएफ कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये कागज लेके आते हैं, बोलते हैं लेबर साइन कर दो इस पे, तुम्हारा पेमेंट चला गया। अच्छा, लेबर का साइन करवाते हैं? हाँ हाँ, नॉर्मल सी बात है ये। आप किस चीज का साइन करते हो? सर वो ये बोलते हैं अगर पेमेंट लेनी है फुल एंड फाइनल पे साइन कर दो, तुम्हारी पेमेंट आ जाएगी। ये हर महीने ऐसे ही करते हैं, वो सबको पता है। लेकिन अभी 2% के साथ कुछ लेबर करने को तैयार था, जो कोई बात नहीं, हम आपको दिवाली में दे दो या कभी जब आपको देना है साल में, आप हमारा ही पैसा हमें वापस करोगे। कोई यहाँ फंड बोनस तो है नहीं, हमारा खुद का पैसा हमें वापस होता है। अगर वापस करेंगे तो चलो एक साथ दे देंगे, लेबर मान गया। लेकिन उसके बाद अब इन्होंने अलग अलग मुद्दा बनाया, जैसे फैक्ट्री का कुछ घटेगा तो तुम जिम्मेवार हो, तुम दोगे पैसा। फैक्ट्री ने बिल, किसी फैक्ट्री का अगर मान लीजिए यहाँ से माल गया, माल जाने के बाद वहाँ पे कोई ख़राब हो गया, नुकसान हो गया, उसके पैसे तुम दोगे। और डेबिट काटने की वजह से हम लोग यहाँ धरना लगाए हुए हैं। कारीगरों का रेट कम कर देना है, सैलरी नहीं देना है सही टाइम से, इस करके सारे हम लोग धरना लगाए हुए हैं। धरना इसलिए लगा के बैठ रहे हैं कि हर महीने पर मंथ इनको 2% डेबिट काटना ही काटना है, या हमारा क्वांटिटी पूरा हो या न हो। ठीक है, उसके बाद फिर एक मीटिंग करके, क्योंकि अभी काम फंसा हुआ है, सारा काम पूरा करने के बाद फिर एक बार मीटिंग होके वर्करों को जो सिस्टम में आना चाहिए, जो कानून के मुताबिक होगा, जो कानून के मुताबिक रखना चाहिए वो कानून के मुताबिक रखेगा, तब ये वर्कर काम। सर उसी लिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। इन्होंने बाद में हमसे 2 महीना पहले इनसे भी बात हुई थी कि आप ये पैसे वापस कर दो, लेबर आने वाले टाइम में आपके पास लेबर नहीं मिलेगी, आपकी फैक्ट्री की रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है। ਇਹ ਝੂਠਾ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 600-700 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿਤਰੰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਗਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰੋਗੇ ਫਟ ਜਾਏਗਾ, ਹਵਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਐਲਪੋਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ 8-10 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਛੱਡੀਏ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 600-700 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ MLAs ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿਤਰੰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਚਿਤਰੰਜਨ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਉਹ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ,
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਮੇਰੀ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੱਗੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2% ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਗਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲ ਦੀ ਪੇਪਰਸ, ਆਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਚਿਤਰੰਜਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਲਤ ਕੱਟੇ ਆ, ਕੀ ਕੱਟਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਲੇਬਰ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਦੋਂ ਦੋਗੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ 100% ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਪੈਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-10 12-12 ਸਾਈਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਛੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੇਬਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਫੜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੱਲ ਹੈ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਇਨ ਸਿਸਟਮ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਪਲੇਨ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰੋਗੇ ਫਟ ਜਾਏਗਾ, ਹਵਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਉਹ ਚਿਤਰੰਜਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੇ ਚਿਤਰੰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਐਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ 4 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਚੋਂ। ਸਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਚਿਤਰੰਜਨ ਜੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਟਨ ਜੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਚੀਜ਼? ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਿਸਟਮ, ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
एवरीथिंग इज टू सिस्टमाइज। अगर साडी ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ। सर एक लास्ट क्वेश्चन बस भी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। थैंक यू। ये क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रितेश कुमार है। इस कौन सी फैक्ट्री के बाहर बैठे हो धरना लगा रहे हो? हम अल्प्रोज और एरिटेक्स दोनों कंबाइन फैक्ट्री है। अच्छा जी, अल्प्रोज भी इनकी फैक्ट्री है और एरिटेक्स भी इनकी फैक्ट्री है। आज उसके सारे लेबर यहाँ पर आके बैठे हुए क्या हैं। कारण है? कारण यही है सर कि किसी से सही तरीके से बात नहीं करते हैं। अगर पैसे मांगने के जितने लेबर बैठे हैं सिर्फ पैसों के लिए बैठे हैं और कोई मुद्दा नहीं है। पैसा सर ये है कि कुछ पैसे कटौती है जो हर महीने ये काट रहे हैं, वो उसका हिसाब नहीं है। बस जो आपकी अगर तनख्वाह 10,000 है तो आपको मिलना 8,000 है। कारण क्या है? वो कारण ये है, ये कहते हैं कि हमारा डेबिट कट गया, हमारा माल वापस आ रहा है, हमारे माल का नुकसान हो रहा है। अगर कोई भी फैक्ट्री क्या पीएफ कह के काटते हैं? कुछ नहीं सर, कोई पक्के में नहीं है, सब कच्चे में है। सब कच्चे में है। कुछ- जितनी भी लेबर बैठी है वो सब कच्चे में सर, किसी से कोई साइन नहीं करवाए जाते, किसी का कोई पीएफ कुछ नहीं। ये कागज़ लेके आते हैं, बोलते हैं लेबर साइन कर दो इस पे, तुम्हारा पेमेंट चला गया। अच्छा, लेबर का साइन करवाते हैं? हाँ नॉर्मल सी बात है ये। आप किस चीज़ का साइन करते हो? सर वो ये बोलते हैं अगर पेमेंट लेनी है फुल एंड फाइनल पे साइन कर दो, तुम्हारी पेमेंट आ जाएगी। ये हर महीने ऐसे ही करते हैं। अब पेमेंट तो आप बोल रहे हो फिर भी काट के आ रही है। सर कट के आ रही है, बात तो यही ना, कट के आपको मिलेगी वापस। कितने सालों से कट रही है? ये कट रही है लगभग 3 साल से। 3 साल इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन तब आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं चला? पता होता था, लेकिन सर बोलते तो मिल जाएगा ना वापस, मिल जाएगा। ये बताया जाता है ये मिलेगा आपको। 3 साल हो गए यही बात बोल के आप। हाँ 2% कटता है वो सबको पता है, लेकिन अभी 2% के साथ कुछ लेबर करने को तैयार था, जो कोई बात नहीं, हम आपको दिवाली में दे दो या कभी जब आपको देना है साल में, आप हमारा ही पैसा हमें वापस करोगे। कोई यहाँ फंड बोनस तो है नहीं, हमारा खुद का पैसा हमें वापस होता है। अगर वापस करेंगे तो चलो एक साथ दे देंगे, लेबर मान गया। लेकिन उसके बाद अब इन्होंने अलग अलग मुद्दा बनाया, जैसे फैक्ट्री का कुछ घटेगा तो तुम जिम्मेवार हो, तुम दोगे पैसा। फैक्ट्री ने बिल, किसी फैक्ट्री का अगर मान लीजिए यहाँ से माल गया, माल जाने के बाद वहाँ पे कोई ख़राब हो गया, नुकसान हो गया, उसके पैसे तुम दोगे। तुम दोगे नुकसान, तुमने गलत किया है। यहाँ फैक्ट्री में इनका कोई पर्सनल जिम्मेवार आदमी नहीं है, ये बोलेंगे कोई जिम्मेदार नहीं है। सब अपनी अपनी तनख्वाह लेके जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो इनके स्टाफ है मेन इनमें 3-4 आदमी इनके मेन स्टाफ हैं। आप किस पोस्ट पे काम करते सर मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ। हो? आप इंचार्ज हो जी। तो आपको सारा पता है और जनरल मैनेजर भी आपके साथ जी है। तो उनका क्या कहना है इसके बारे में? उनका यही कहना है सर, उनके पास जाते थे पहले जनरल मैनेजर ही बात सुनते थे, जब जनरल मैनेजर की सुननी बंद कर दी। पहले तो यही होता था, जाके जनरल मैनेजर से बात करेंगे, हमारा क्यों कट रहा है पैसा, ये पैसा नहीं कटना चाहिए, जनरल मैनेजर से बात कर। जब इन्होंने जनरल मैनेजर की सुननी बंद कर दी, अब जनरल मैनेजर की जगह दूसरा मैनेजर आया हुआ है। वो मैनेजर 1-2 महीने से चला रहा है, वो बोल रहा है कि मैंने देखना है जो देखना है। जब आप साइन करते तो उसके ऊपर कुछ लिखा होता तो वो साइन होता नहीं है सर, बैंक में पैसे जाते हैं। आपकी अगर 15,000 बनी है, आपकी 13,000, करते हो पूरे कागज पे करते हो, फॉर्म पे करते हो साइन? कोई फार्म नहीं होता साइन करवाते हैं सर। वो तो 1 साल का पहले साइन करा के रखा हुआ है। आप। 1 साल का? और क्या, 1 साल का पहले साइन कराया हुआ है, हमें पता भी नहीं है क्या है वो। अगर आप कहें ना तो 1 साल का, अभी भी इस महीने मैंने काम किया ना, लेकिन इस महीने के पैसे 15 तारीख को मिलेंगे। मतलब आपको गुमराह करके ये साइन करवा लेते हाँ हैं, सर, पैसे का लालच देके। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे का लालच क्या, आप ही का पैसा आपको दे देंगे, करवाते हैं। बस सर यही बात है। अगर फैक्ट्री में नाइट लगती है तो लेबर को रोटी का पैसा शाम को मिलना चाहिए, कि रोटी का पैसा दिया जाए 50 रुपये। वो हर फैक्ट्री में नियम है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिलता, अपना खा के अपना काम करो, ये सिस्टम। जो पैसा कटता है वो कहाँ जाता है? वो कंपनी में होता है, कंपनी के मालिक का है। कंपनी की जेब में जाता है। हाँ आपको वापस भी नहीं नहीं, इनसे बात करने जाओ कोई बात नहीं करता। ये सारे वर्कर है, ये 3 सालों से इनको कोई सारे पैसे कटे हुए हैं। सब ये बैठे मेरे साथ, इनसे बात कीजिए। 1-1 रुपये काट के, 1-1 रुपये, ये अकेला मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितनी जनता है सब यही बात बोलेगी। काटना इनकी फितरत में लिखा हुआ है, ये काटेंगे। भाई की नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार है। की कारण आज धरना लगाया है, केड़ी फैक्ट्री ने बगैर लाया, कितने लाया? लगाया यहाँ डेबिट सारे को कटे जा रहे हैं। एरिटेक्स अल्प्रोस इंडस्ट्री है, जिसमें हम लोग सारे काम करते हैं, और डेबिट काटने की वजह से हम लोग यहाँ धरना लगाए हुए हैं। कारीगरों का रेट कम कर देना है, सैलरी नहीं देना है सही टाइम से,
इस करके सारे हम लोग धरना लगाए हुए हैं। अच्छा, क्या कह के आपका डेबिट काटा जाए? बोला जाता है कि कंपनी को नुकसान हो गई आगे चल के, ये आपको काटना पड़ेगा और आगे रिकवर करेंगे आपको। क्या नाम है जी आपका? मुन्ना गोस्वामी। आज ये फैक्ट्री के बाहर धरना लगा के बैठे सारे वर्कर, क्या? धरना इसलिए लगा के बैठे हैं कि हर महीने पर मंथ इनको 2% डेबिट काटना ही काटना है, या हमारा क्वांटिटी पूरा हो या ना हो। अगर कोई फैब्रिक नुक्स है उसमें अगर 10 पीस कम होता है तो बोलते हैं कि नहीं आपको कटर मास्टर को पड़ेगा, स्टिचिंग वाले को पड़ेगा, ओवरलॉन्ग फोल्डिंग पर पड़ेगा। कोई ना कोई बहाना बना के डेबिट काट ही दे रहे हैं। अंदर बाबू की गलबात हुई है? ये बात हुआ कि पहले तो ये मुद्दा उठा कि यहाँ कोई एक्ट ना है नहीं, कानून के हिसाब से वर्करों को रखा नहीं गया। ये हुआ कि जो ये लोग 5-6 साल से जो काम किए हैं, जो इनका कुछ कटा कूटा है पैसा, वो भी हम देंगे और जो काम पूरा कर लेगा, ठीक है, उसके बाद फिर एक मीटिंग करके, क्योंकि अभी काम फंसा हुआ है, सारा काम पूरा करने के बाद फिर एक बार मीटिंग होके वर्करों को जो सिस्टम में आना चाहिए, जो कानून के मुताबिक होगा, जो कानून के मुताबिक रखना चाहिए, वो कानून के मुताबिक रखेगा, तब ये वर्कर काम करेगा। हाँ, संतुष्ट है कि काम होना। हाँ, कम सिर्फ 10 दिन करना है काम, जो काम बकाया काम है, अधूरा काम है, जो मशीन पर जो काम लगा हुआ है, जैसे टी शर्ट बन रहा है, आधा काम है, आधा काम बाकी है, वो पूरा करके सिस्टम में, उसके बाद फिर मीटिंग होकर बैठ के डिस्कस करके उसके बाद एग्री। मैं कामरेड चितरंजन कुमार जी। आज यहाँ हम लोग बैठे हैं, मजदूर का और मालक का थोड़ा सा ये कि जो डेबिट वगैरह है वो काट लिया जाते हैं, और कंपनी मालक जब लास्ट होता है, ठीक है 2-4 मुद्दे कुछ बढ़िया से बताए ही होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ फैक्ट्री अपार्टमेंट के कोई भी सूद यहाँ नहीं है, जो वो फैक्ट्री में नहीं है, ये है दिक्कत। तो हम चाहते हैं जिला प्रशासन से कानून है उसके अधीन वर्करों को रखा जाए, सारी सहूलियत जो मिलता है वो मिलना चाहिए, यही आज का जो मुद्दा है। तो और में कितने लेबर काम करती है? यहाँ 150-400 यहाँ पर है और 300 वहाँ पर है। तो अब 450 लोग यहाँ पर बाहर बैठे हैं, धरना लगा रहे हैं, तो फैक्ट्री के मालिक की तरफ से आपको कोई आश्वासन दिया? अभी आश्वासन, अभी बैठ के मीटिंग हो रहा है, अभी मिश्रा जी को मैं लेने आया हूँ, मिश्रा जी भी, हम और जो मेन आदमी है 2-4, अच्छा जी। वो चल के सर ਅੱਜ फैक्ट्री के बाहर बैठे हो ਤੇ नारे लगाए जा रहे हैं डेबिट कार्ड कटना बंद करो, की पूरा मामला की है, किहड़ी जगह बैठे हो, किहड़ी फैक्ट्री? सर मैं शंभूनाथ मिश्रा, फैक्ट्री का जनरल मैनेजर, ठीक है। और इस फैक्ट्री में हम लोगों को काम करते हो गए 6.5 साल। 6.5 साल हो गए, उसके बाद 3.5 साल से इनको डेबिट करने लग गया कि हमारा नुकसान होता है, ट्रांसपोर्ट में जो माल जाता है, ठीक है, उसका भी डेबिट होता है, माल कहीं चोरी हो गया उसका भी डेबिट हम इनको रिकवर करके देते हैं। ये कहते हैं फैक्ट्री में घाटा हो गया, घाटा ये लेबर से पूरे करते हैं। और जब हमने पीछे इनसे बात करी तो इन्होंने बोला कि पैसे हम दिवाली में वापस कर देंगे, लेकिन आज तक पैसे वापस नहीं हुए। ये देखते देखते दिवाली 3 दिवालियाँ निकल गई, और उसके बाद फिर लास्ट मोमेंट में हमने मंगलवार से फैक्ट्री आना बंद कर दिया। और चूंकि मैं खुद गार्जियन हूँ, एक तरीके से मैं जनरल मैनेजर फैक्ट्री का, इस करके लेबर के हक के लिए मैं खुद बाहर बैठा हूँ। नहीं, किस चीज का डेबिट काट रहे हैं? डेबिट घाटा इनको हो रहा है तो लेबर से रिकवर कर रहे हैं। ये क्यों करेंगे? अब इनसे पूछा जाए ये लेबर क्यों कर रही है, जब फैक्ट्री को फायदा होता है तो उसमें ये शेयर नहीं देते। उसको शेयर देते हैं? नहीं, बिल्कुल शेयर नहीं देते। जब शेयर देते नहीं है तो वे घाटे के आपसे डेबिट कार्ड सर उसी लिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। इन्होंने बाद में हमसे 2 महीना पहले इनसे भी बात हुई थी कि आप ये पैसे वापस कर दो, लेबर आने वाले टाइम में आपके पास लेबर नहीं मिलेगी, आपकी फैक्ट्री की रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि नहीं हम वापस कर देंगे, पेमेंट ये वाली भी चली गई। उसके बाद फिर बंदों ने ये हुआ कि भाई अब हम आगे नहीं झेल सकते हैं और हमें ये काम तो करना ही पड़ेगा, मीडिया में जाना पड़ेगा, लेबर कोर्ट जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। जब पिछले 3 सालों से काट रहे हैं, पिछले 3 सालों से वो सारा डाटा आप लोगों ने क्यों इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई? आज 3 साल बाद ही क्यों? सर 3 साल बाद आवाज़ इसलिए उठाई जा रही है, ठीक है, कि चलो हो सकता है इनका नुकसान हो, हम लोग इनके फेवर में काम किया आज तक, ठीक है। लेकिन जब एक लिमिट पार हो गई कि हमेशा ही कोई बात होती है तो क्या नाम है, काम करना है करो, नहीं करना है ना करो, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से एक लिमिट होती है, लिमिट पार कर गया, उसके बाद हम लोगों ने फिर जो है
इस पोजीशन पे बैठे हैं कि नहीं हमें धरना देना पड़ेगा या तो हमें लेबर कोर्ट जाना है, जहाँ भी जाना होगा हम जाएंगे। जी। तो अब इनसे बात करेगी है उसके बाद? नहीं नहीं, इन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया। अच्छा, तो अभी बाहर धरना लगाए हैं, कोई फैक्ट्री के मालिक या ना 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 ना, कोई बात करने नहीं आया। अच्छा, आपसे कोई बात नहीं है? कोई किसी ने कोई बात नहीं की। अब आपकी मांग क्या है? बाहर धरना लगा के बैठे हो क्या? ये टोटल बंदों की पेमेंट कर दें, जितना इन्होंने पेमेंट काटा है वो सारा पेमेंट वापस कर दें, और कोई मांग नहीं। 3 साल में जो हाँ। पेमेंट काटा है? हाँ, जो काटा है वो सारा वापस कर दें। अच्छा, कुछ आप बात कर रहे थे, कुछ सैलरी लेट देने की बात भी? हाँ, सैलरी भी लेट होती है। सैलरी अभी क्या नाम है 10 से शुरू होती है, 20, 22, 24, 25। लेबर ने इनको इतना सपोर्ट किया कि इनकी फैक्ट्री 2.5 महीने तक पेमेंट होती थी, ठीक है, तब भी लेबर काम करी है यहाँ पे। लेबर इनको इतना सपोर्ट करी, लेकिन लेबर को ये नहीं जानते हैं, ये समझते हैं कि अब मेरे पास पैसा आ गया, कहते हैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा ऐसे, ठीक है। 900 लोग देखें कहाँ जाएंगे, ठीक है, हमारे पास पैसा है, हम बुला लेंगे बंदे। तो अभी इनसे बात हुई नहीं? फिर अभी कोई बात नहीं हुई। तो इसके बाद आपने कोई कंप्लेंट करी है लेबर कोर्ट में? नहीं, अभी लेबर कोर्ट में कंप्लेन नहीं करी है। अगर यहाँ से मसला हल होगा ठीक है, नहीं तो लेबर कोर्ट जाएंगे। या मजदूर यूनियन का भी? हाँ, नहीं, मजदूर यूनियन का ही बंदा है, अच्छा, वो हमारे चितरंजन जी हैं। आ जाओ चितरंजन जी। ये भी आप ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਤਨਖੂਹ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ ਡੈਬਿਟ ਕੱਟਦੇ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਤਬਦੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ? ਕੀ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ 2% ਡੈਬਿਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।